This conference will now be recorded. So welcome June batch. Last week, no new exercise have been given, but last week we were there to complete those incomplete work which we have done during last several weeks. Till now, you were able to search growing economies and hope I have just opened that spreadsheet in front of you. Hope you all are able to now do it. So whenever you are discussing on any matter, any company, any industry, anything, first thing we need to know that where world is heading towards, where major economies are heading towards, right? What developed economies are heading towards, and where our India, China type of emerging economies are heading towards. Right? This year, we are moving on the untraveled path, challenging path, where we have seen huge fall in GDP. So this is the first thing where we should focus any time. Right now, since last 2-3 days, H1 results started coming. Right? So H1 result, till now we have just seen 2-3 companies result. For example, we saw TCS result, which belongs to which sector? Can you write down? Now I hope you all are able to write down, or you all are able to know which company belong to which sector. Yeah, please write it down in the chat box. TCS belong to which industry? Yes, please. Hope just a minute. Yeah, chat box is already opened. Yeah, Dhaval bhai, IT industry. You are absolutely right. So we already know that IT industry 80% turnover comes from, yes, again, chat box is open. From which countries IT industries generate business? Yes, please, you can note down. Do they do business from India, China, Bangladesh, Indonesia, or their major turnover comes from America, Europe? Absolutely, developed countries. And we have seen that developed countries have got affected, yeah, but developed countries have money. They are going to come out early from this pandemic. It is expected, right? And the effect on the companies will be lesser than emerging countries, sorry, right? Yeah, emerging countries are moving so fast, but it is high clear that emerging countries are not as rich as developed countries, right? So IT industry, you saw the result. They are still doing good business. Yes, I agree with all of you that till time they were growing by 15-20%. This year they are growing by 0 to 5%, but 0 to 5 is very good versus other industries growth of minus 50%, minus 80%, right? You saw the result of TCS with 2% growth. Today you saw the result of Wipro with 1% growth, right? So be prepared. IT industries are going to outperform overall India, or we can say Nifty, right? You may have seen the result of GM Brew. Now GM Brew result have also announced, and as you saw, see, GM Brew is not a big player in beverages industry, but you can say that beverages industries are not going to make lifetime high at least this year, right? Because that is not the product which is high necessity. We can say FMCG is necessity, right? We need HUL, we need Colgate, और कुछ लोगों को छोड़ के we do not need daily United Spirit.
UBL, right? So yeah, we are going to see fall, and that is the reason we have seen downfall in the sales of GMB. It's all right, and we are prepared for that. Some specialty chemical companies have announced their result, and you saw that see majority of the turnover comes from again developed countries, because developed countries do not want to produce these chemicals because they produce highly pollution, right? So yes, we are going to see good sales in specialty chemical companies. Majorly good sales would be there which are having export business, right? But yeah, it is also affected, but not highly affected. But travel companies, hotels, these all are highly affected. So everything has started from this GDP, right? So today I'm going to give you chance to present, right? What you should present, you should first say about GDP. Maybe 30 seconds or 1 minute is enough for GDP, right? We want to know what our GDP is doing. Then what was the next which you learned? See, you learned searching growing economies. Am I right? Now see, while you were searching growing economies, let me open your spreadsheet, your own spreadsheet, not any company spreadsheet, but this is your own spreadsheet. Okay, this was your own growing industries data, right? Let me remind you that you search this growing industries data from the sales growth. So it should be clear, जहां धंधा आता है, कौन सी कंपनी धंधा कर रही है, वो तो हम सबके ध्यान में होना ही चाहिए, हमारी जबान पे होना चाहिए. जब भी कोई बोले क्या खरीदे, कहां डाले पैसा, first you should have a list of growing industries list, right? So hope now you are able to analyze which companies are able to do business. I agree. Pre-pandemic, post-pandemic, there are some changes. For example, airline is the fastest growing industry in India, but post-pandemic it is not growing. Agree? Yeah, मानते हैं हम लोग, right? So it will affect this year. ये साल खराब जाएगा. और एयरलाइन को वापस पुरानी स्पीड में आने में कम से कम अगले साल का क्वार्टर 1 तो लगेगा. इतना जल्दी ऐसा नहीं है कि हम सोचेंगे दिस ईयर दिस इंडस्ट्री विल अगेन गेट यू टर्न, राइट? So there are many industries which you can bifurcate in this way, but it's all right. Long term growth तो आना ही है, right? These were the sectors. तो मैं चाहूंगा when I will give you opportunity to present yourself, first you are going to take 30 seconds, 1 minute for GDP, where India is heading toward this year and on long term. Then you should at least say 5 to 10 growing sectors. बोल सकोगे कि नहीं बोल सकोगे? 5-10 तो चाहिए कि नहीं चाहिए, है ना? इतना ग्रोइंग इंडस्ट्री चाहिए. वो 5-10 ग्रोइंग सेक्टर में से what I will need a one company, quality company. See, when you search these growing industries, it doesn't mean all the companies which belong to growing industries are going to rally. Yeah, on short term, धंधा बढ़ेगा तो हर कंपनी दौड़ेगी, हर एक कंपनी चलेगी उस सेक्टर की. But why you do research on quality companies? You know, क्योंकि हर कंपनी टिक नहीं पाएगी. धंधा मिल रहा है तो हर एक कंपनी का धंधा चलता है. Each and every company are able to grow. फालतू हो अच्छी कंपनी हो, सबके धंधे बढ़ेंगे. तो अब धंधे बढ़ेंगे तो प्रॉफिट भी तो बढ़ने ही वाला है, राइट? बट वी वांट टू सी वेदर दैट प्रॉफिट विल सस्टेन फॉर लॉन्ग. आपको क्या जानना था? वो कंपनी पे अगर डेप्थ ज्यादा है और डेप्थ है अगर, एंड दैट कंपनी इज ग्रोइंग बाय 20% बिकॉज इंडस्ट्री इज गुड, वो कंपनी का प्रॉफिट 20% से नहीं बढ़ेगा. व्हाई?
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड, जो लोगों को 10-15 साल बाद पता चलती है। लोग सोचते हैं ये कंपनी चल रही है, बढ़िया है, डालो पैसा। पर अगर उन्होंने क्वालिटी नहीं देखी है, तो वो कंपनी का धंधा बढ़ रहा है बिकॉज इंडस्ट्री इज ग्रोइंग, पर क्वालिटी अच्छी नहीं है, मार्जिन अच्छे नहीं है। जब भी कुछ प्रॉब्लम आता है वो इंडस्ट्री में, वो कंपनी वापस प्रॉब्लम की वजह से अपने पुराने प्रॉफिट पे आती है। एंड दैट इज द रीजन यू सी हाई वॉलेटिलिटी इन दिस टाइप ऑफ कंपनीज। 15 साल बाद वो कंपनी वही भाव पे होती है। सो कुछ लोग कहते हैं शेयर बाजार में लोग आते हैं, पैसा रखते हैं, अनुभव लेके जाते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है। हमें पैसा इन्वेस्ट करना है। अनुभव भले इतना नहीं हो, डेटा स्टडी से अनुभव लेना है और सही में वेल्थ क्रिएट करना है, प्रोड्यूस करना है, राइट? क्योंकि खाली अनुभव नहीं ले जाना है हमें कि 15 साल हुए और मेरी कंपनी वहीं के वहीं। दैट वाज द रीजन यू इन्वेस्टेड योर टाइम ऑन दिस क्वालिटी कंपनीज। था कि नहीं ये सब क्वालिटी कंपनीज? क्वालिटी कंपनीज में क्या देखा? अरे यार, आपकी कंपनी धंधा ही नहीं कर पाई तो काय की क्वालिटी? हर धंधे वाले की सबसे पहली खूबी है कि वो धंधा कर पाती है। इफ दे आर नॉट एबल टू सेल देयर प्रोडक्ट, दे आर नॉट क्वालिटी, राइट? सबसे पहली चीज क्वालिटी। देन यू सर्च फॉर द कंपनीज which were able to have better margins, companies with lesser debt। कैसे देखा था आपने? आईसीआर रेशियो से, राइट? व्हाट नाउ आई विल रिकमेंड यू, यू नो, मैं आपसे ये रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पे डेप्थ के डेटा भी लिखो। क्योंकि देखो, शुरुआत में ही मैं आपको सारी चीज कहूंगा, ये डालो वो डालो, हमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। अब सारी कंपनी की डेप्थ जान के क्या करेंगे जब हमें पता है ये सेक्टर में ये दो तीन ही कंपनी पे तो ध्यान रखना है। वाई टू वेस्ट अवर टाइम ऑन ऑल दोस कंपनीज, राइट? तो दो तीन कंपनियों के दो तीन डेटा लिखो और डेप्थ एंड रिजर्व, ये दोनों डेटा कहां से लेने, यू ऑल नो, राइट? इससे क्या होगा? आपको एक बड़ा फायदा होगा, आपको पता चल जाएगा कि डेप्थ भी कैसी है आईसीआर के साथ, राइट? आईसीआर से आपको पता तो है ही कि डेप्थ कैसी है, बट स्टिल इफ यू हैव डेट एंड रिजर्व डेटा, डेट वुड बी फाइन, राइट? सारी कंपनी की नहीं, खाली इंपॉर्टेंट कंपनी की। ऑल राइट, सो नाउ यू आर विथ क्वालिटी कंपनीज। अब मैं चाहूंगा जब आप अपनी कंपनी को प्रेजेंट करो, आपने एक सेक्टर लिया, वो सेक्टर की एक कंपनी, दो कंपनी, तीन कंपनी, कितनी कंपनी है जिन पे ध्यान रखा जाए, कितनी कंपनी पे हम फोकस करेंगे, विच कंपनी वी कैन बाय ड्यूरिंग एनी फॉल, ये चीज पे थोड़ा बात होना चाहिए, राइट? देन आफ्टर सर्चिंग टॉप क्वालिटी कंपनी, आपने और एक चीज किया। आपने क्या किया? आपने उस कंपनी का बिहेवियर जानने का प्रयास किया, राइट? वैल्यूएशंस एंड बिहेवियर। व्हाट वाज दिस वैल्यूएशंस एंड बिहेवियर? आपने उन सारी कंपनियों के 15-20 साल के इतिहास देख लिए, राइट? होल लॉन्ग स्टोरी, ताकि पता चले कि पानी ऊपर से ही अच्छा है, अंदर से खराब ऐसा तो नहीं है, राइट? योर कंपनी शुड बी अ टॉप क्वालिटी। अगर आपके सामने दो कंपनी है, एक कंपनी अच्छी है, दूसरी कंपनी भी अच्छी है, बट दिस कंपनी is having consistent sales performance, profit performance. If your company have never made loss versus that other company who have made loss in their 15-20 history 2 to 3 times, तो मुझे आपको बोलने की जरूर नहीं है कि that company is good, right? That was the reason you search, you check the consistency of your company। ये चीज को लाइटली मत लेना, बराबर है? तो बिहेवियर देख के आपने ये भी बताया कि बॉस, कंपनी का मैंने 20 साल का डेटा देखा है, कंपनी ने कंसिस्टेंट परफॉर्म किया है। आप ये कह सकते हो पीयूष भाई, क्या कल ये कंपनी अच्छी नहीं चली तो? अरे दोस्तों, अगर ये कंपनी नहीं चलेगी तो आपके लिस्ट में वो दूसरी 25 कंपनी है, क्या वो चलेगी? जिस घोड़े ने बरसों से पुरवार किया है कि ये सेक्टर में सबसे अच्छा मैं हूं, मैंने आपको तब साथ दिया जब
कोई नहीं दे रहा था जब बाकी कंपनियां लॉस कर रही थी। तो इतना याद रखो, सबसे आखिर में इस प्रकार की कंपनियां बिगड़ेगी। अगर आप कंपनी में गलत नहीं पढ़ने वाले हो, अगर टॉप क्वालिटी और बिहेवियर देख के करते हो, आप गलत किधर पढ़ सकते हो? इंडस्ट्री में, कि चलो आपने सोचा था और ग्रोथ नहीं हुआ, इट्स ऑल राइट। लेकिन फिर भी आप उस सेक्टर में भी सबसे बढ़िया कंपनी में हो, तो आपको कंसिस्टेंट पैसा मिलता ही जाएगा। सोचो वो दूसरी 80% कंपनियों का क्या होगा जिनकी कोई क्वालिटी नहीं है? बुरे समय में वो सब कंपनियां पहले ही साल से लॉस में आ जाएगी, एंड योर डिविडेंड विल बी स्टॉप फ्रॉम दिस ईयर। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री अच्छी नहीं है। कितना बड़ा फर्क पड़ता है, समझे इससे लॉन्ग टर्म में, राइट? दैट इज द रीजन यू सर्च फॉर दिस बिहेवियर। आपने ग्रोथ देखा और एस्टिमेट करने का प्रयास किया कि आने वाले 10-15 साल में वेयर यू आर लुकिंग फॉर योर कंपनी। अब देखो, ये एस्टिमेट जाने दो। सबसे बड़ी चीज क्या है पता है? एफडी मेरे को 6.25% ब्याज देगी, मुझे 12% चाहिए यार, बाकी सब चीजों को मारो गोली। अगर मेरे को 12% भी मिलता है ना, देन ऑल्सो ह्यूज वेल्थ इज गोइंग टू बी क्रिएटेड इन कमिंग टाइम। पर यार एफडी का जितना नहीं मिलना चाहिए। अब 8% में शेयर बाजार से कमाऊं, उससे तो अच्छा है फिर एफडी में ही डालो। क्यों रिस्क लेने का, राइट? आई एटलीस्ट नीड 12%। तो ये सब मेहनत क्यों कर रहे हैं? हमें 12% से ज्यादा कमाने का है, क्योंकि नहीं तो अपना भाई एफडी तो है ही जो हमें रिटर्न देने वाला है सेफ। ऑल राइट। और ये आप जब इस प्रकार से काम कर रहे हो, यू आर गोइंग टू गेट 15%। ऑल राइट। सो दिस वर वैल्यूएशन। फिर आपने क्या सीखा? आपने सीखा कि किस प्रकार से आप, कहाँ गई आपकी स्प्रेडशीट? ये रही। आप अपनी कंपनी में और अलग कौन इन्वेस्टर्स आपके साथ है, उनकी जानकारी ली आपने, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, राइट? क्या आपके साथ जो दूसरे पियर ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स है, क्या वो होशियार लोग हैं कि रिटेलर लोग हैं? आपने देखा आपकी कंपनी का मेजर कॉस्ट क्या है, सबसे बड़े खर्चे हैं कौन से है आपकी कंपनी के। आपने वो चीजें जानने का प्रयास किया। दैट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। फिर आपने चार्ट के साथ उसको कंपेयर करने का प्रयास किया। आपने लेटेस्ट रिजल्ट डाले, एंड योर लेटेस्ट रिजल्ट गाइडेड यू वेदर यू शुड बी एग्रेसिव इन बाइंग और शांति रखो। जैसा मैं कई समय से बता रहा हूँ, HDFC, AMC, IRCTC, राइट, इन सब कंपनियां अच्छी है, वेल्थ क्रिएटर है, लेकिन फिलहाल तो नीचे आएगी, जिसके कारण एग्रेसिव होने की जरूर नहीं है, शांति से लेंगे, थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करेंगे। पर आप एफएल, आप TCS, जो कंपनियों के धंधे हर क्वार्टर में पैनाडेमिक के बाद बढ़ रहे हैं, आप वहां पे शांति रखोगे तो कैसे चलेगा, राइट? सो क्वार्टरली रिजल्ट टेल्स यू वेयर टू फोकस मोर, राइट? चार्ट्स ने आपको क्या बताया? चार्ट्स ने आपको सिखाया कि किस प्रकार से शेयर उठते हैं, किस प्रकार से बिहेवियर है लॉन्ग टर्म में कोई भी शेयर का, वेयर यू शुड बाय। 50 मेमा है, कब कंपनियां ब्रेकआउट देती है, ब्रेकआउट इज योर फर्स्ट टाइम बाइंग। ट्रेडर रिमोर्स आता है आपकी कंपनी में, सेकंड अपॉर्चुनिटी। ऑल राइट। अलग अलग अपॉर्चुनिटीज हर 3-4 साल में आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपके वो बढ़िया शेयर को बाय करने की, और हर 9-10 साल में जबरदस्त अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको, बढ़िया अपॉर्चुनिटी एकदम अपने अच्छे शेयर को बाय करने की। ये एक गोल्डन पॉइंट है। आप बोलो मेरे को याद आया तब मैं शेयर लेने को आऊं, वो नहीं चलता है, राइट? ऐसा जरूरी नहीं है जब आपको याद आया, जब आपके पास है, तब सब शेयर आपके लोअर पी पे होंगे, बराबर की नहीं? पर हाँ, आपको 3-4 साल में बढ़िया मौके जरूर मिलेंगे शेयर बाय करने के, और 9-10 साल में तगड़े मौके मिलेंगे। देखो वॉरेन बुफे साहब के स्टाइल क्या है, वो ये तगड़े मौके वाला अपॉर्चुनिटी लेते थे, 9-10 साल वाला, राइट? उन्होंने 3-4 साल वाले भी मौके लिए, जब जब अपॉर्चुनिटी मिली चलो पैसा लगाते हैं, बराबर की नहीं? पर ऐसा नहीं है कि रोज मेरे को मौका चाहिए, आया हूं तो कुछ तो लेके जाऊंगा, ऐसा नहीं चलता है, बराबर है?
ये सारी चीजें हमने पिछले कुछ समय में सीखी। चार्ट्स ने आपको बताया कहाँ पे बाइंग लेवल है, फंडामेंटली भी आपने ढूंढा कहाँ पे बाइंग लेवल है, तो आपको पता चलता है बोथ थिंग्स आर मैचिंग, राइट। इन चीजों पे हमें चर्चा करनी चाहिए, राइट फ्रेंड्स। सो लेट मी ओपन द विंडो। आज की विंडो हम ओपन करेंगे बातचीत के साथ। अशोक भाई, माला मैडम, धवल भाई, अनिल भाई, आई थिंक यू ऑल फ्रॉम जून बैच, राजेश जी, राइट, ओके, विनोद भाई, ओके। सो मैं सबसे पहले ये स्प्रेडशीट पे आ जाता हूं and I will begin today's meeting with Dhaval Bhai. Dhaval Bhai, are you ready? Yes, Dhaval Bhai. Ready हो क्या आप? I'm not able to hear voice. Yes, sir. हाँ, yes, Dhaval Bhai. कैसे हो? एकदम बढ़िया? Yes, sir. Okay. बस फाइन सर। या मैं आपसे 10 मिनट में कितनी जानकारी चाहता हूं पता है धवल भाई? इंडिया और वर्ल्ड कैसा कर रही है, कोई 1 2 3 4 5, कोई भी 5 ग्रोइंग इंडस्ट्रीज, उसमें सबसे बढ़िया कंपनी कौन सी है, और आप फंडामेंटली करंट रिजल्ट को ध्यान में रख के उसको कहां खरीदोगे, और एज पर चार्ट आप धवल भाई उस कंपनी में क्या अनुमान रखते हो। आप उस कंपनी का मेजर कॉस्ट भी कह सकते हो और उस कंपनी के पीयर इन्वेस्टर की भी इंफॉर्मेशन दे सकते हो, राइट। हेलो सर, आई कैन नॉट हियर। हाँ, अच्छा धवल भाई, मैं रिपीट करता हूं, आपके पास 10 मिनट है। हाँ सर। भी आवाज आ रही है मेरी धवल हाँ भाई? सर, क्लियर सर। आपके पास 10 मिनट है और 10 मिनट में आपको इंफॉर्मेशन देनी है इंडिया और वर्ल्ड कैसा कर रहा है। कोई भी 5 ग्रोइंग इंडस्ट्रीज के नाम, 5, वो 5 ग्रोइंग इंडस्ट्री में सबसे बढ़िया कंपनियां कौन सी है, वो 5 कंपनियों की अगर आपने मेजर कॉस्ट देखी है कि उनकी वीकनेस क्या है, जब आपको एक्टिव रहना है कोई भी नेगेटिव पॉइंट पे, वो 5 कंपनियों में शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसी है, आपने अगर डेटा है तो आप बता सकते हो। और उन 5 कंपनियों का क्वार्टरली रिजल्ट के हिसाब से आप क्या अनुमान रखते हो ये साल, आने वाले 10 साल में, और एज पर चार्ट आप उसे कहां खरीदना पसंद करोगे। क्या ये इंफॉर्मेशन दे पाओगे 10 मिनट में? नहीं सर। हाँ, ज्यादा चीज, ओके, तो क्या दे पाओगे बोलो धवल भाई, कितनी चीजें इनमें से, जो भी मैंने आपको तो बहुत सारी चीजें बताई, राइट। हाँ सर। मैं आपको समय देता हूं 10 मिनट का, आप अपने हिसाब से अपने पॉइंट यूज करके मेरे को बताइए। लेकिन देखो आखिर में क्या चाहिए पता है, शॉर्ट में बोलूं तो कौन सी इंडस्ट्री, कौन सी कंपनी, कौन से भाव पे लेनी है। हमने सब मेहनत इसीलिए तो की है, बराबर ना धवल भाई? ये तो कह पाओगे ना? हेलो, मैं आपके सामने पूरा लिस्ट ओपन कर देता हूँ ग्रोइंग इंडस्ट्रीज का, या आप लैपटॉप पे हो तो आपको मैं अपॉर्चुनिटी देता हूँ अपने लैपटॉप से प्रेजेंट करने की, आप बोलो ऐसा। नहीं सर, आप ओपन कर दीजिए। ओके, चलिए, ये वर्ल्ड का डेटा आपको दिख रहा है, अभी मैंने जीडीपी का डेटा ओपन किया हुआ है, और ये मेरे ख्याल से राजीव जी का काम है, ये जो आपके सामने है। जस्ट अ मिनट, प्रदीप माधवानी, ओके, प्रदीप भाई ने काम किया हुआ है। अब ये उन्होंने कुछ जीडीपी पे काम किया है, राइट। बता सकते हो जीडीपी पे क्या आप आशा रखते हो आने वाले 5-1 साल की, इस साल की? सर 49 ईयर्स से 8% से जीडीपी बढ़ रहा है, राइट। हाँ ये मेरा है। मैंने आपका ये डेटा ओपन कर दिया ताकि आपको आसान रहे, बराबर, बताइए। इंडिया 49 ईयर्स से 8% से ग्रो कर रहा है इंडिया का जीडीपी। लास्ट 19 ईयर्स से 10%, करंट ईयर का 6% है, और एवरेज एस्टिमेटेड
8% है। ओके, राइट। और इस साल? इस साल 6% सर। अच्छा, नहीं ये तो पिछले साल का है, इस साल तो 6% हो ही नहीं सकता धवल भाई, इस साल तो कोरोना है। इस साल कम होगा, है ना? 2% के हाँ, देखो आसपास। अभी जस्ट आपका मीटिंग चालू हुआ ना, उससे पहले आईएमएफ का लाइव मीटिंग चल रहा था। आईएमएफ ने प्रेडिक्ट किया कि भाई इंडिया का ग्रोथ 4.5% का रहेगा इस साल का, और अगले साल 5.5% से बढ़ेगा, राइट। तो ये साल तो माइनस में अपना 4.5, और दुनिया का ग्रोथ उन्होंने प्रेडिक्ट किया है कि ऑलमोस्ट 5.5% से पूरा वर्ल्ड टूटना चाहिए ये साल, बराबर ना। और आने वाले समय तो चलो 8% का हम एस्टिमेट ले ही रहे हैं, और बढ़ना चाहिए इंडिया 8% के ग्रोथ से। ग्रोइंग इंडस्ट्री में आपका क्या ख्याल है? यस दल भाई, कोई भी 5 ग्रोइंग इंडस्ट्री अगर मैं आपको कहूं, तो आप किस किस को पॉइंट आउट करोगे? आपका आवाज नहीं आ रहा है धवल भाई, आप म्यूटेड हो। हेलो। यस, अभी आया, अभी आया। यस। ओके सर। So first from breweries and distilleries sectors. ओके, फिर दूसरी? दूसरी life insurance, ओके, then advertising and media, ओके, banks and small finance, ओके, consumer electronics. कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक। तो मैं ये मानूंगा कि धवल भाई ने प्लान किया हुआ है ब्रू, लाइफ इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग, स्मॉल फाइनेंस और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक में तो पैसा लगाने का है, हाँ बराबर। सर। कि भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ये 15-20% के ग्रोथ से आगे बढ़ेंगे, राइट। ओके सर। अब इन पांचों सेक्टर में कौन सी कंपनी में आप इन्वेस्ट करोगे? टॉप क्वालिटी कंपनीज। ब्रूअरीज में से सर UBL, यूबीएल, ओके, लाइफ इंश्योरेंस से HDFC लाइफ इंश्योरेंस, ओके, एडवर्टाइजिंग एंड मीडिया से एफल, ओके, बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस में से बंधन बैंक, ओके, एंड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से वोल्टास हेवल्स। ओके। हेवल्स को हम अदर इलेक्ट्रिक यूटिलिटीज में रखेंगे, ओके बराबर ना सर। धवल भाई? क्योंकि वोल्टास का तो क्या है, सारा धंधा कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक से आता है, हेवल्स ओके का सर। खाली 25% आता है, इसलिए ओके हेवल्स सर, को देन कंज्यूमर वोल्टास। इलेक्ट्रॉनिक में देते हैं, बराबर। ओके, तो वोल्टास को हमने रखा। तो ये 5 कंपनी में आपने निवेश किया, क्या आप मुझे श्योरिटी से कह सकते हो कि यही 5 कंपनियां सबसे कंसिस्टेंट है, कम डेप्ट वाली है, हाँ और सर। कम बढ़िया मार्जिन वाली है ये सेक्टर में जो आपने बताई? हाँ सर। ओके, तो हम कोई और कंपनी पे ध्यान नहीं देंगे। इनमें से कौन सी कंपनी का आप बाइंग लेवल कह सकते हो? आपने किसी में काम किया हुआ हो तो मैं वही ओपन करता हूँ, ये जून नहीं सर, वो रेंज। मैंने वीडियोस देखे, ग्राफ देखना ओके, पड़ेगा। खोलू चार्ट, खोलू मैं? बोलो कौन सी कंपनी का हाँ चार्ट सर, ओपन करूं? वोल्टास। वोल्टास। तो मैंने भी बहुत टाइम से वोल्टास का चार्ट ही नहीं देखा है, मैं भी देख लेता हूँ, क्योंकि मैं भी उसमें ऐड करता हूँ हर फॉल में वोल्टास को, बरसों से। ओके, ये वोल्टास है, सही है। यस, क्या कहोगे धवल भाई, वोल्टास में हमें कहां पे बाय करना चाहिए और क्या उम्मीद रखे? धवल भाई आपका आवाज बंद हो गया है, वो वापस क्रॉस का सिग्नल आ गया लगता है, हो सकता है शायद आप ईयरफोन से बोल रहे हो, निकल गया ईयरफोन, कुछ प्रॉब्लम है लेकिन। ओके, नहीं सुनाई दे रहा है आवाज।
नहीं, चलो धवल भाई अपना माइक सेट करे, तब तक कौन कहेंगे आप में से एनीबॉडी? क्या करे बोलो, वोल्टास से क्या उम्मीद रखे? हेलो सर, 500 गुड इवनिंग। हाँ बोलो, कहाँ पे? 500 550 550 के आसपास ना? 550। राइट राइट, Yes, एब्सोल्युटली। ये जब कोरोना आया था तब हमें अपॉर्चुनिटी दी इसने 50 से 100 मेमा में बाय करने की, दी ना? तो जो लोगों ने लिए वो बढ़िया, राइट। अभी रिकवर हुआ, इसे रैली कहेंगे कि रिकवरी कहेंगे? ये रिकवरी है, रैली नहीं है। तो टूटने के बाद रिकवर हुआ। अब देखो, 1 महीने में टूटा, कितने महीने से रिकवर हो रहा है? मतलब 1 महीने में जो मार पड़ी ना, ये वो पुलिस का डंडा था, है ना, जो 6 महीने तक याद रहा। अभी तो हम मुश्किल से वही लेवल पे आए हुए, तो एक करेक्शन मोड में है, राइट। इसके धंधे, इसके चार्ट जैसे ही है, धंधों में लाइफ टाइम हाई नहीं है, राइट। पहले क्वार्टर में कुछ सेल नहीं हुआ, अब ये वापस रिकवर करेंगे, लेकिन ये जरूरत की प्रोडक्ट नहीं है। जरूरत की जो प्रोडक्ट है उनके धंधे कम गिरे, जो जिसे हम लग्जरी में गिन सकते हैं, जिसे हम जरूरत के सिवाय की प्रोडक्ट में गिन सकते हैं, वो प्रोडक्ट में भी रिकवरी आएगी। पर ये एक्सपेक्टेड है Q2 Q3 Q4, राइट। Q3 Q4 में वापस अच्छी रिकवरी आ जानी चाहिए, राइट। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हम इसे 550 के करीब वापस इकट्ठा करने का प्रयास करेंगे, राइट। तो चार्ट इज क्लियर। और ये जो समय है पूरा SIP का समय है, हर आराम मोड SIP के लिए होती है। फिर ये जब यहां से तीर छूटता है तो कम से कम 2-3 गुना शेयर हो जाता है, राइट। तो हम आशा रखेंगे 700 से चलेगा तो ये 2000 तक रुकने वाला नहीं है। तो हो सके उतना 700 से 500 की रेंज में SIP करे, ताकि 700 के बाद लेने पूरा गांव आएगा। ब्रेकआउट के बाद सब ट्रेडर लोग के ये फेवरेट शेयर हो जाता है, तो वो लोग रोज आएंगे और हम उनको देंगे। हमारा काम है जब तक लोग इनएक्टिव है यहाँ पे SIP करें। होप इट इज क्लियर, राइट। ओके, चलिए धवल भाई, शुक्रिया एंड थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अशोक सोनागरा। यस अशोक भाई, जी गुड इवनिंग आर सर। यू ऑनलाइन? गुड Yes, इवनिंग, sir. कैसे हो? फर्स्ट क्लास सर। मैं चाहूंगा, मैं आपको प्रेजेंटर बना देता हूं और मैं चाहूंगा आप अपनी गोल्डन शीट बताओ। गोल्डन शीट यानी कौन सी शीट? जो जो मैंने आपने 120 कंपनियों की बनाई है। तो जबरदस्त बिल्कुल। अभिनंदन अशोक भाई आपको, वेरी वेरी गुड। मैंने वो Thank आपकी you. पूरी स्प्रेडशीट देखी, एक्सेल शीट चेक की, आपने जबरदस्त काम किया है, काबिले तारीफ। और याद रखिएगा ये स्प्रेडशीट आपको बहुत काम लगने वाली है, राइट। जी सर। तो जी सर। उसे जस्ट अ मिनट में आपको प्रेजेंटर बना देता हूं। जी सर। ओके, सो नाउ यू आर द प्रेजेंटर। आप प्रेजेंट कर One minute, सकते हो sir. अपने लैपटॉप में से, जी सर। या दिखता है ओके, सर? बढ़िया, एकदम क्लियर दिखता है, एकदम। एक मिनट सर। हम्म। अशोक भाई, जबकि आपने जी सर। भारत की 120 सेक्टर पे काम कर लिया है, पूरे के पूरे काम पे, तो मैं आपसे ये जी भी सर। जानना चाहूंगा कि थोड़ा आपने ये एक्सेल शीट जो बनाई है, इसमें क्या क्या जी। चीजों का ध्यान रखा है जिससे ये ज्यादा काम लगे, वो भी थोड़ा एक्सप्लेन करें। यस, आप जी सर। बता सकते हो, राइट। ये सब मैंने पूरे 100 जो हमारी BSc के अंदर पूरी जो सबसे 122 इंडस्ट्रीज के जो लिस्ट है, उसको मैंने इसके अंदर मैंने सब इंडस्ट्रीज को ले लिया है। सर आपको दिख रहा है ना पूरी सीट? हेलो, सीट हाँ दिख हाँ, रही है ना? आवाज आ रही है आपकी? नहीं, यस, सीट दिख दिख रही है, रही है दिख रही बराबर? है। हाँ ठीक है।
हाँ दिख तो रही है ये ना, प्रॉपर दिख रही है। हाँ, तो ये पूरे के पूरी 122 इंडस्ट्रीज का मैंने पूरे का पूरा लिस्ट बनाया है इसके अंदर। और उन सारी इंडस्ट्रीज में जितनी कंपनी जिस सेक्टर के अंदर लिस्टेड है, उस लिस्टेड कंपनी को मैंने काउंट्स के अंदर जो लिखा है, मतलब सबसे पहले ये हेल्थ केयर फैसिलिटीज आती है, उसके अंदर काउंट्स के अंदर 12 इंडस्ट्रीज, तो इस सेक्टर के अंदर 12 इंडस्ट्रीज को लिस्टेड किया गया। यहाँ से लिंक Okay. करके हम करेंगे तो हमें ये पूरे के पूरी 12 इंडस्ट्रीज जो इस सेक्टर के अंदर लिस्टेड है वो हमें मिलेगी। और इस 12 इंडस्ट्रीज का हम मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालेंगे, और जो मार्केट कैपिटलाइजेशन में कौन सी इंडस्ट्रीज कितने मार्केट कैपिटलाइजेशन से इसका शेयरिंग है वो हमने निकाला। उसमें से 80% मार्केट कैपिटलाइजेशन कौन सी कंपनी कितनी कंपनी आती है वो हमने उसको अलग किया। तो हमने देखा कि जैसे कि हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर 3 से 4 कंपनियां जो आती है, जो ये पूरी इंडस्ट्रीज में से ऐसी 80% मार्केट कैपिटलाइजेशन उन चारों कंपनियों का है, जिसमें से अपोलो हॉस्पिटल जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 60% है, नारायण रुदर है जिसका 40% है, और फोर्टिस जिसका 90% है। उसके बाद मैंने क्या किया, जो 80% कंपनियां जो आती है उनका 4 ईयर का ग्रोथ निकला, सेल्स ग्रोथ कितना है वो निकला 2020 और 2016। उसका जो हमने आपने जो सिखाया है वो ग्रोथ का फॉर्मूला वो लगा के वो उसमें निकाला। उससे हमें पता चलता है कि इस इंडस्ट्रीज का एवरेज ग्रोथ 47% आता है, जिसमें से अशोक भाई यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, जी सर, ये जी सर। अपोलो हॉस्पिटल में एक 2020 वाली फिगर मिलियन में है और ये करोड़ में है, ऐसा हो गया है। ओके, तो उसमें से ये 7 निकाल दो क्या? हाँ निकाल दो। ओके सर, राइट, ओके 16%। ओके अभी बराबर है, राइट। सॉरी सर, हाँ। तो इसके हिसाब से ये जो 16% का ग्रोथ है, एवरेज ग्रोथ, तो ये इसे हमें मालूम पड़ता है कि कौन सी ये इस सेक्टर में सबसे बढ़िया सेल्स ग्रोथ किसका है। तो हम इस सेक्टर के अंदर हमें पूरे सेक्टर में पूरे सब इंडस्ट्रीज देखने की जरूरत नहीं है। उसमें से हम 3-4 कंपनी के बारे में अभी देखेंगे कि जैसे कि ये अपोलो हॉस्पिटल है, तो अपोलो हॉस्पिटल के बारे में हम इसका ये जो हमने सिर्फ 4 बरस का ग्रोथ लिया है, नेक्स्ट हम उस कंपनी के पूरे 10 साल का इतिहास निकालेंगे, जिसके अंदर इसके रिलेटेड सेक्टर की कंपनी कौन सी आएगी और उनमें से इसका सेल्स ग्रोथ कितना है, प्रॉफिट ग्रोथ कितना है, उसके कौन सी कंपनी के ऊपर डेप्थ है। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे फोर्टिस का मार्केट कैपिटलाइजेशन 90% है, लेकिन वो कंपनी इतनी ज्यादा बढ़िया नहीं है। वो हम अगर उसके डिटेल स्टडी करेंगे तब मालूम पड़ेगा कि उसके ऊपर डेप्थ कितना है, उसके ऊपर क्या है। तो पहले सबसे पहले सेक्टर में से मतलब वो फिल्टर आउट करने के लिए हमने सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट मार्केट कैपिटलाइजेशन का लिया है। इसके लिए मैंने क्या किया कि पूरी की पूरी जो लिस्टेड कंपनियां है 122, उसका पहले मैंने लिस्ट बना दिया। यहाँ पे मैंने पूरा लिस्ट बनाया है, मार्केट कैपिटलाइजेशन फिल्टर करके सबसे जो ज्यादा ऊपर आएगी, यहाँ देखो हम फिर से कर देते ही नीचे आ जाएगी, राइट। हाँ, तो ये यूटिलिटी जो है 38% में आ जाएगी। तो मैंने क्या किया कि पहली देखा हमने कि वो फिल्टर किया, तो इसके साथ इसके रिलेटेड कंपनियां भी हमें पहले से ऊपर उसके साथ ही आ गई। पहले जो ऊपर हमें फोर्टिस दिख रही थी, यहाँ पे वो गेल आ गई। तो इससे क्या होता है कि हमें स्टडी करने में थोड़ी आसानी रहती है। यहाँ मैंने अशोक भाई एक मिनट, अशोक भाई आपका कहना है कि जो भी कंपनियों के सामने आपने 80% वाली कंपनियों के नाम भी लिख दिए है, मतलब कि डिपार्टमेंट स्टोर में डीमार्ट, आदित्य बिरला फ्यूचर रिटेल, बायोटेक्नोलॉजी में बायोकॉन, मतलब ये सब मेजर जो कंपनियों का कंट्रीब्यूशन अपने सेक्टर में उनके नाम भी लिखे हैं आपने, ऐसा है? हाँ जी सर, सही समझा मैं? हाँ, तो ये क्या है कि देखिए डिपार्टमेंटल स्टोर है, वो 12 कंपनी लिस्टेड है, उसमें से 4 कंपनी ही 80% मार्केट कैपिटलाइजेशन में आती है। वो कौन सी आती है वो मैंने यहाँ पे दिखाया है, जिसमें से डीमार्ट, आदित्य बिरला और रिटेल, और ये तीनों कंपनियां उसमें आती है, ठीक है। बहुत और यहाँ पे मतलब क्या है कि
अच्छा, जो तो जो मतलब 80% 120 सेक्टर की हाँ सारी अच्छी कंपनियां यहाँ पे अच्छी नहीं हाँ बोलेंगे, सब पर वो कंपनी जो मतलब रिस्पॉन्सिबल है बिजनेस के लिए, वो कंपनी के नाम लिखे हैं आपने, बराबर? 80% मार्केट ओके, कैपिटलाइजेशन में जिसका हिस्सा है वो यहाँ पे दिखेंगे हमें। अच्छा, बढ़िया काम किया यार, एकदम बहुत अच्छा, वंडरफुल। और यहाँ पे मैंने क्या किया है कि ये जो ये पूरे सेक्टर का ग्रोथ दिखाया है, शॉर्ट टर्म ग्रोथ हाँ, फोर्थ ईयर का, और इसके बाजू में ओके, मैं अभी ये कर रहा हूँ। इस सेक्टर का पूरे का पूरा ये मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है ये हम देख सकते हैं यहाँ से। बराबर। 82 करोड़ मैंने ये करोड़ में कन्वर्ट किया है। ये फिगर हम्म, ये टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन इस सेक्टर का यूटिलिटी का है। तो हमें कितना राइट। मार्केट कैपिटल इस सेक्टर का मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है वो फर्स्ट इससे हमें मालूम पड़ जाता है कि इस सेक्टर 82 करोड़ अभी इस इंडस्ट्रीज बाजार में 82 करोड़ का इन्वेस्टमेंट बराबर, यूटिलिटी के अंदर है, जिसमें से गेल बराबर। उसमें से 80% मार्केट कैपिटलाइजेशन में कौन सी आती है, तो हमें यहाँ से ही मालूम पड़ जाता है ओके, कि गेल, आईजीएल ये और जीएसटी है। आपने बताया यूटिलिटी सेक्टर लाख करोड़ का भी सेक्टर नहीं है वैसे, 83,000 हाँ मतलब करीबन लाख जी करोड़ का है। जी, तो ये यहाँ से हमें 82 ये लेकिन मालूम ऊपर पड़ ही कहाँ जाता है। से लिखा आपने? ये फिगर कैसे ये लिखी और डिपार्टमेंट स्टोर में 1.5 लाख करोड़ कैसे लिखा आपने? जी सर, क्योंकि ये मैंने फिगर क्या तो किया, ये पूरी जो करोड़ में डिपार्टमेंट आती है। स्टोर के अंदर जाएंगे तो हाँ, यहाँ जो इसका जो टोटल मार्केट कैपिटल है ये फिगर मैंने हाँ, ऊपर लिया है। ये जो बराबर, पूरे का पूरा सेक्टर का मार्केट कैपिटल है ओके, इसका टोटल किया, ये फिगर मैं अच्छा। यहाँ से डायरेक्टली यहाँ लाया हूँ। तो लेकिन पूरा के यहाँ एक पे अंदर तो जाके आप एक फर्क है यहाँ पे अशोक भाई उसमें और उसमें। देखो ये फिगर क्या देख के सीधा पता चल जाता है कि एक हाँ लाख 50,000 करोड़ का मार्केट कैप है, एकदम सिंपल 1.50853, पर अंदर की यस सर। फिगर तो बहुत लंबी चौड़ी है। अच्छा सर, ये मैंने क्या है कि उसको ये जो दिखा रहा है ना उसको मैंने हाँ, करोड़ में कन्वर्ट कर दिया है, मतलब इसको करोड़ से डिवाइड कर दिया कैसे? है। कैसे? ये एक मिनट में दिखाता हूँ। हम्म, ये जो फिगर है मैंने ऊपर ले लिया हाँ, यहाँ पे और इसको करोड़ से डिवाइड कर दिया। क्या बात है अशोक भाई, ताली होनी चाहिए अशोक भाई के लिए, एकदम सिंपल काम कर दिया, क्या कि वंडरफुल सर वो वंडरफुल। इतना बड़ा फिगर देखेंगे हम पिछले वाला तो हम हाँ, कंफ्यूज हो जाएगा। ये सही किसी भी बात है, बहुत अच्छा न्यू किया आपने। मेरे जैसे जो न्यू न्यू मैं वही सोचूं यार यूजर कि है। कितना सिंपल हो गया, मतलब ये लाइफ इंश्योरेंस का सीधा दिख रहा है यहाँ पे 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप हाँ जी, है ना? हम वो कंपेयर कर वो सकते हैं एक पिछले दूसरे को, वाले सर वेरी गुड। फिगर देखेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि कितना है। हम जैसे लोगों के एक बार हमें यूज टू हो जाएगा तो फिर मालूम हो जाएगा। हमें गिनना पड़ता है कि हाँ, 268 327 करोड़ हमें ये फिगर इसमें टाइम जाता है, और यहाँ से बराबर, सीधा में मालूम हो जाता है कि कौन से ओके, जल्दी है कौन से राइट ज्यादा तो, वाला है। हमें यहाँ से सीधा खबर राइट, पड़ेगा कि लाइफ इंश्योरेंस 268 करोड़ का बिजनेस उसमें हम्म, मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो तो मतलब ये इजी टू डिवाइड बाय यूज। करोड़ वाली आइडिया आपकी बढ़िया है, यूनिक एकदम, वंडरफुल आइडिया। जी सर, थैंक यू सर। तो ये आपने तो मार्केट कैप का लिस्ट बनाया और उसके बाजू में सेल्स का लिस्ट डाल दोगे, हाँ बराबर वो ना? अभी करने का है, गुड, लेकिन इसमें क्या है सर कि यहाँ पे जो हम्म, मुझे जो सेल्स मिलेगा वो सिर्फ 80% वाला मिलेगा, लेकिन इसके बाद जो बराबर, नेक्स्ट में करने वाला हूँ मैं अभी हम्म, दिखाता हूँ सबको, उसमें मेरा काम ओके, चल रहा है। इसमें ओके, क्या है कि जो इस सेक्टर की जो कंपनी आएगी उसका पूरे हम्म, का पूरा लिस्ट मिलेगा, ये भी मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। तो और राइट, मैंने क्या किया है सर कि पूरी अगर देखेंगे हम यहाँ से जाएंगे ढूंढने इंडस्ट्रीज को तो हमें बहुत हम्म, देर लगती है, कौन सी है यहाँ बहुत देर लगती है। इससे हम्म, मैंने इजी टू यूज टू करने के लिए यहाँ से लिंक कर दिया है। यहाँ से कोई भी हम्म, कंपनी के अंदर जाएंगे, यहाँ से वापस आने के लिए मेन सीट पे यहाँ मैंने लिंक कर दिया है, तो राइट, फ्रंट बढ़िया पेज में आ किया, जाएंगे। तो गुड, हमें इजी टू यूज टू हो जाएंगे हम। तो बराबर, यहाँ पे बराबर, जितनी भी 80% मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनियां है उसका शॉर्ट टर्म ग्रोथ यहाँ मैंने लिखा है। ये ओके, जैसे भी यहाँ ये हम चेंज करेंगे यहाँ पे, सपोज हम्म, ये मार्केट कैपिटलाइजेशन उसका कम हो जाएगा तो जिंदादिल यहाँ से हम्म, निकल, जैसे कि इंडेक्स में होता है ओके, कि जैसे राइट, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन खत्म होता है वो निकल जाएगी, इसी तरह ये मेरी बराबर, सीट से भी निकल जाएगी ऑटोमेटिकली। अच्छा, अच्छा, आपने टॉप क्वालिटी कंपनी पे काम किया हुआ है? ये जैसे कोई भी एक हाँ सेक्टर सर, जिसका टॉप हाँ क्वालिटी कंपनी है,
हाँ तो हाँ मैं कर रहा हूँ, 1 मिनट। ये टॉप क्वालिटी कोई इसमें भी। अभी सिर्फ, हाँ ओके अभी एक मिनट। जो पहले वाली शीट बनाई उससे मैंने डेटा लिया है। इसके बाद यस, ब्रेवरेजेस, चलो बराबर। या इस तरह मैं कर ओके रहा हूँ, इसके अंदर मैं हाँ, फिगर डाल रहा हूँ। तो देखो ये ये जो, जो सेल्स वाला डेटा तो यहाँ से मिल ही जाएगा आपको, हर एक सेक्टर जी का सर, हाँ जी और सर, सारी कंपनी का, बराबर ना। तो आप जी सर। मार्केट कैप और सेल्स दोनों वो वहां पे लिख सकोगे। यहाँ से, हाँ यहाँ से ये यहाँ आ जाएगा सर, हाँ, यहाँ पे आ जाएगा टोटल सेल्स। तो अशोक भाई की स्प्रेडशीट में 123 सेक्टर आ गए, 123 हाँ सेक्टर का ग्रोथ आ गया, उनका मार्केट कैप आ गया और उनका धंधा आ गया। मुझे नहीं टोटल है। लगता है कि बहुत एनालिस्ट के पास भी ये डेटा होंगे, राइट। और इसके हर एक बाद ये सर, सेक्टर का आपको मार्केट कैप पता है, हर एक सेक्टर का धंधा पता है। वंडरफुल वंडरफुल। इसके बाद सर ये जो फिगर है वो भी मैं फ्रंट पेज के सीट में डालने वाला हूँ, जैसे कि ईपीएस का एवरेज कितना है, फिर इसका राइट। आईसीआर का एवरेज कितना आएगा, रिटर्न ऑन हम्म, इक्विटी, पूरे सेक्टर का जो डेटा है हमें यहाँ टॉप क्वालिटी कंपनी के फ्रंट सीट से मिल जाएगा यहाँ से, राइट जैसे कि मैंने पहली राइट, वाली सीट में दिखाया था। बराबर है बराबर है। और ये सब ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगे सर। ये वो हम्म, मैंने लिंक कर दिया एक्सेल की वजह से। सिर्फ ये जब ये ईयर चेंज होगा तो ये सेल्स का हम्म, फिगर सिर्फ चेंज होगा। बाकी के राइट। सब इसके अंदर फॉर्मूला लगाया है कि जैसे कि वो हम्म, इसके आएगा तो ऑटोमेटिकली सब फॉर्मूला, पी रेशियो भी बराबर है। फॉर्मूला से मिल जाएगा, एल भी मिल जाएगा, नेट प्रॉफिट मार्जिन भी मिल जाएगी। सिर्फ हमें यही राइट। जो मैंने ये डार्क का वाला जो लगाया ऊपर, वही चीज हमें मैन्युअली डालनी है, इसलिए बराबर है। मैंने यहाँ पे उसको खाली सेल्स, आइडेंटिफाई किया है। एक्सपेंस, फाइनेंस, प्रॉफिट, ये 4 चीज होगी तो बाकी सब चीजें ऑटोमेटिकली हो जाएगी, हाँ जी है सर, ना। जी जब सर। भी रिजल्ट आते हैं अपने, ये 4 चीज की हमें खाली जरूरत है, और कोई हाँ तो चीज की ये तो मैं जरूरत है नहीं। डालूंगा तो बाकी सब चीज ऑटोमेटिकली आती हम्म, जाएगी। करेक्ट करेक्ट, राइट। इसके ऊपर गुड, सर अभी बहुत मैं अच्छा काम अशोक कर रहा भाई। हूँ, ये हम्म, अभी काम कर रहा हूँ सर इसके अंदर थोड़ा। अभी ओके, इसमें 2-3 कंपनी का लिए किया है मैंने, बराबर और यहाँ भी बराबर। इसी तरह उस लेकिन तरह भी मतलब है कि अब फ्रंट कंपनी अशोक में आ भाई, जाता आपने है। जैसा ग्रोइंग इंडस्ट्री पे काम किया जी सारे सर, सेक्टर में, तो आपको यस, पास पता चल गया ग्रोइंग इंडस्ट्री कौन सी है। लेकिन एक खाली रीचेक कर लेना पड़ेगा आपको, जहां जी पे भी सर, जैसे फिगर बड़ी दिखती है ना, तो वो चीज को रीचेक कर लेने का। जी जैसे जी अभी आपका बिल्कुल, जो यूटिलिटी सेक्टर दिखा रहे थे ना आप, हाँ यूटिलिटी हाँ, नॉन इलेक्ट्रिकल, उसमें यस, जीएसपीएल के भी ग्रोथ में प्रॉब्लम है। जी देखो सर, मेरे को हाँ कैसे वही, पता चला, जस्ट हाँ वो देख के सर थोड़ा मुझे क्रॉस आइडिया चेक आता है। करना है। हाँ वो हाँ, उसे मुझे शांति से क्रॉस कर चेक लेंगे, करना है। कोई दिक्कत नहीं। देखो अगर आपने इतना सारा काम किया है तो कुछ छोटा मोटा तो प्रॉब्लम होगा, इससे कोई फर्क नहीं हाँ जी पड़ता, सर, इट्स ऑल राइट, हाँ बराबर जी ना। सर, बिल्कुल पर बाद में बिल्कुल जब सर, आप एरर चेक करोगे ना, उस समय जहां हाँ पे भी बड़े बड़े फिगर आती है ना, हाई ओके फिगर, सर, वो दोबारा ओके, देख लेने की क्या सही में इसका ग्रोथ 40% है क्या। कभी कभी हाँ हमें लगता है कि नहीं होगा, पर होता है, हाँ बराबर जी की नहीं। सर, जैसे डिपार्टमेंट हाँ स्टोर, कोई डाउट ही नहीं, वो तो हाई ग्रोथ इंडस्ट्री है, जी सर, हाँ right? हाँ, ओके सर। तो लेकिन ये अभी आपके क्या है पास सर, मैं एक और बढ़िया वो, डेटा होगा, और वो होगा टॉप क्वालिटी कंपनी का। जी टॉप सर, क्वालिटी पे सारी कंपनी में काम करने वाले हो आप? मतलब सारे सेक्टर में? हाँ जी सर, पूरे का ये पूरे वेरी गुड, 122 सेक्टर तो पूरा सब करूंगा। बराबर, जो बढ़िया आपने बढ़िया। जो 3-4 सीट दी है वो पहले वाला मैंने हाँ, कर दिया। इसके बाद ये दूसरा ओके, वाला टॉप क्वालिटी में आ जाऊंगा। इसके बाद जो हम बढ़िया। लास्ट सब के सब हम्म, मैं अपने हिसाब से करने वाला हूँ। राइट। पर शुरुआत किससे करने की? ग्रोइंग इंडस्ट्री से, जी बराबर सर, ना, जी सर, ताकि सबसे हाँ काम के तो हाँ सेक्टर आ सर, जाए। इसीलिए मैंने ये लिस्ट लगाई है यहाँ पर। जो ग्रोइंग हाँ, इंडस्ट्रीज की आएगी उस ऊपर से नीचे जाऊंगा मैं। राइट यहाँ से राइट, स्टार्ट करूंगा, बहुत अच्छा। यहाँ हम्म, से स्टार्ट करूंगा, और यहाँ से राइट, धीरे धीरे करके नीचे जाऊंगा। और इसमें अंदर जो हाँ कंपनी बराबर है, आएगी, बराबर उसमें बराबर, जो बहुत बढ़िया अच्छे कंपनी बहुत आएगी, अच्छे। जी सर। और मैं ये चाहता हूँ कि मुझे थोड़ा लगता है कि जो हम किसी भी कंपनी के डेटा है वो ऑटो अपडेट मिल जाए तो बहुत बढ़िया हम्म, होता है। जैसे कि हम सिर्फ सेल्स का फिगर और ये प्रॉफिट का फिगर डाल दें, बाकी हम्म, ऑटोमेटिकली हमें मिल जाए, ऐसा कुछ करना चाहता हूँ। हाँ, लेकिन ट्राई करता हूँ सर। बराबर। सबसे पहले मैं बेसिक नीड जो डेटा है वो कलेक्ट करता हूँ, पहले डेटा राइट, एक्सेल में करना चाहता हूँ। आपको खाली
अगर 4 डेटा कलेक्ट किए ना तो ये जितनी भी चीजें लिखी है सब अपने आप आने वाली है। हाँ बस वही करना चाहता हूँ। एक्सपेंस, फाइनेंस, प्रॉफिट, बराबर। ये सब प्राइस भी लाइव आएगा, ये भी मैंने लाइव डाल दिया है यहाँ पे। हाँ अच्छा किया, बढ़िया काम कर दिया ये। गुड इवनिंग सर, मैं अनिल बोल रहा हूँ। क्या लगा पता है? हाँ कौन बोल रहे हो? अनिल पाल। हाँ अनिल भाई, कहिए अनिल भाई। मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर, अशोक भाई ने बहुत अच्छा काम किया है और इनको कुछ हमारी तरफ से कुछ अवार्ड मिलना चाहिए। एक बात तो ये है, दूसरा ये है कि क्वार्टरली रिजल्ट का भी कुछ रिफ्लेक्शन आना चाहिए यहाँ पे, जिससे कि हम जैसे ही हमारा वो भी क्वार्टरली रिजल्ट का भी मैं यहाँ डालने वाला हूँ, जो हम इसके वेरी बाद गुड जो बनाएंगे उसी में मैं डालने वाला हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं बताता हूँ जो हमने बनाया। ये तो सर, ये तो प्रॉफिट फ्रॉम इट का विकिपीडिया बना दिया इन्होंने। सही बात है। वो सर जो दूसरी वाली सीट आएगी ना उसमें मैं बनाने वाला हूँ, जैसे उसी में वो बढ़िया रहेगा सर। स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो उसमें जैसे कि एनुअली रिजल्ट मिलेंगे उसी से हम क्वार्टरली रिजल्ट भी इसी तरह मिलेंगे सर, इसी लाइन में। किसी भी कंपनी का हमें क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 का जो मेन डेटा है सब मिलेंगे, फ्रंट सीट से मिल जाएंगे। और फ्रंट सीट के बाद हम सिर्फ इस लिंक को क्लिक करेंगे तो इसके डिटेल में उसकी स्प्रेडशीट में चले जाएंगे हम इस तरह। और इसके बाद अगर एपोलो हॉस्पिटल की मैं ऐसा लिंक करने वाला हूँ, एपोलो हॉस्पिटल की एक लिंक करोगे तो 20 बरस का हमें डेटा मिलेगा। वो उस सीट से, वो इस सीट से लिंक कर दूंगा सभी सीट को। यानी मतलब तीसरा स्टेप, लॉन्ग टर्म बिहेवियर, वो 20 साल वाला पूरा डेटा भी आ जाएगा, बराबर। हाँ जी, वो सब आ जाएगा। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म के एनुअल ग्रोथ। और इसके बाद ये सर मुझे बहुत देर लगेगी, मुझे डेटा समझने में थोड़ी देर लगती है, उसमें करोड़ लाख ये सब मुझे धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। और दूसरी बात, कुछ दिक्कत है वो एनुअल रिपोर्ट से डेटा ढूंढने में आती है मुझे, फिर भी मैं अपने टाइम से लेता है। लेकिन मैं इजी टू यूज सबको मिल। हाँ जी मिलिंद भाई हो ना ऑनलाइन आप? हेलो। हाँ मिलिंद भाई। हाँ सर, गुड इवनिंग, कैसे हो? बढ़िया एकदम बढ़िया सर। हेलो। हाँ सर। क्या कहते हो अशोक भाई का काम? सर जबरदस्त बना है। अभी इनको संदीप भाई से मिला देना चाहिए। पक्का सर, पक्का, एकदम ब्यूटीफुल काम। क्या है, दोनों संदीप भाई भी डेटा में मास्टर, उनके पास भी सब कंपनी का डेटा ये है, तो क्या है दोनों मिलके और आसान कर सकते हैं अपने अपने काम को, बराबर ना? जबरदस्त, करेक्ट सर, करेक्ट। सर मैं ये चाहता हूँ मैं किसी आईटी वाला जो मुझे थोड़ी हेल्प कर दे। मुझे मालूम है कि एक्सेल के अंदर मैंने बहुत काम किया है। मैं अपने हॉस्पिटल का जो पूरा डेटा है इस तरह बनाता हूँ, उसमें मैंने इस तरह काम किया है कि एक ईयर डाल लो तो पूरे के पूरी हिस्ट्री जो हॉस्पिटल का ऑपरेशन किया है सब मिल जाता है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ इसके अंदर डीबी कोड डाल देते हैं तो जो हम वो वेब पेज में जो माहिती मिलती है ना, जो रेडीमेड लोग ये मनी कंट्रोल में मिलता है, वो सब हमारी एक्सेल से वेब पेज में मिल जाए, ऐसा कुछ करना चाहता हूँ। डेटा स्क्रैपिंग बोल रहा है। बोलो। हाँ, वो डेटा स्क्रैपिंग बोल रहे हैं कि वेबसाइट से डायरेक्टली हो जाएगा। हाँ, जैसे सर हम डालते हैं ग्रोइंग इंडस्ट्री सबसे हेल्थ केयर सेक्टर सिलेक्ट करेंगे तो पूरे का पूरा वहां से डेटा मिल जाए। बराबर है, ये सब पॉसिबल है अशोक भाई, पर सबसे पहले समझना जरूरी है, बराबर ना? ये सब आपने किया, देखो आप सब बेसिक समझे, समझने के बाद मेहनत किया तो पता चला कि हर डेटा काम का नहीं है, स्टैंड अलोन कंसोलिडेटेड अलग अलग है, कुछ जगह मिलियन आता है, कुछ जगह करोड़ आता है। ये सब बेसिक चीज समझ में आ गई ना, अब धीमे धीमे वो एक्सट्रैक्शन भी पता चल जाएगा। एक बात बोलूं, जैसे ये पहला ये जो 52 करोड़ सीधा डायरेक्ट दिख रहा है ना मुझे, वो पहले एक महीने से, हम 2-3 महीने से जो मैं आपका क्लास ज्वाइन कर रहा हूँ, तो मार्केट कैपिटलाइज कितना है वो मुझे दिमाग में नहीं आ रहा, मैं बोल ही नहीं सकता कितना करोड़ है। लेकिन यहाँ देख के सीधा से मैं कह सकता हूँ कि 52 करोड़ है, ये 71 करोड़ है। ये मैं ये चाहता हूँ कि हर लोग जो न्यू एंटरप्रेन्योर है वो उसको समझ में आ जाए।
आपका आवाज चिपक गया लगता है हेलो अशोक भाई। हेलो, हाँ आ रहा है क्या? हाँ, बोलो बोलो, अभी सुनाई दे रहा है, हाँ आ रहा है। हाँ, तो मैं ये चाहता हूँ, मेरे जिस तरह मुझे इजी टू यूज हो जाए, सबको ये हो जाए, इसी ऐसा कुछ करना चाहता हूँ। लेकिन इसके लिए बराबर है। मुझे डेटा जो सबसे पहला उसमें काम होता है कि हमारे पास पहले डेटा होना चाहिए, वो भी प्रॉपर। तो वो डेटा में कलेक्ट करना सबसे हाँ पहले मेरा काम यही है कि पूरा डेटा कलेक्ट कर लूं। उसके बाद मैं किसी की हेल्प से हाँ, कुछ अभी क्या नया है, करना चाहूंगा। जैसे कि सर अरे इसमें अभी क्या होता है। आपने जो किया वही करो अशोक भाई। हाँ अभी बेसिक एक बार कर देना जरूरी है, हाँ हाँ, बेसिक जैसे अपने कि आप सर, मेहनत करके, जी बराबर ना? सर, इसमें क्या है देखिए, पहले क्या होता है, हमें ये नहीं मालूम होती कि इस सेक्टर के अंदर कितनी कंपनियां हैं। तो मैंने इसलिए इस हाँ, पूरे का पूरा वो अच्छा इसमें किया। डेटा, मतलब इसके 96 से 97 में कोई नहीं आएगी तभी होगी, लेकिन अभी तक 96 की बराबर, रजिस्टर। राइट तो ये यहाँ से मुझे पता चल जाएगा कि आयरन एंड राइट, स्टील में 96 कंपनी है, लेकिन काम की ओके 5 ही है। बराबर। तो आपने अपने एयरलाइंस में 5 कोरोना है, का पूरे लेकिन पूरा यूज किया है, ऐसा मैं मानता हूँ। आपको जी कोरोना सर हुआ और वो बिल्कुल, कोरोना के समय को आपने पूरे पूरा यूटिलाइज कर दिया। जी सर बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल सर, उसमें फ्री में यही कर रहा था मैं। ओके ओके, बहुत बढ़िया सुंदर बढ़िया, है, गुड। जबरदस्त काम चलिए, किया। राइट। मैं आप सब लोगों से चाहूंगा, देखिए अभी जैसा हमारा आज दोपहर को ही अशोक भाई से बातचीत हुई, और अशोक भाई ये जो इमर्जिंग इंडस्ट्री का वो वापस पुराना लिस्ट बताओ ना आपका, इसके अलावा जो दूसरा है ना। हाँ, एक मिनट। हाँ हेलो सर। हाँ जी, ये वाला। हाँ ये वाला, राइट। अब हाँ देखिए अशोक भाई ने जो डेटा बनाया उसमें जैसे पहले टोटल मार्केट कैप और टोटल सेल्स नहीं था, राइट। इनके डेटा में मिड टर्म ग्रोथ आ गया, तो हमको पता चल गया कि चलो कौन सा इंडस्ट्री कैसा बढ़ रहा है। और ये बहुत अच्छा काम किया कि हर एक कंपनी की रेवेन्यू गिविंग कंपनियों के इन्होंने नाम लिख दिए। अब इनके पास पूरा डेटा ऑलरेडी आ चुका है, सब स्प्रेडशीट में है, तो ये डालना तो बहुत आसान था। तो देखो, दो नई शीट हमने बनाई, एक टोटल मार्केट कैप की और टोटल सेल्स की। आपको लगेगा अरे बाप रे इतना, लेकिन ये तो ऑलरेडी है आपकी शीट में, हमें तो खाली वहां से इधर डालना है। पर ये डेटा आने से कितना काम आसान हो जाता है। तो पहले इसी प्रकार से एकदम बेसिक काम अगर हम करते हैं, तो यही सिंपल डेटा में से हम बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड डेटा को भी बना सकते हैं। दिस इज नथिंग, ये तो एक शुरुआत है। देखो आने वाले 2-3 साल में और क्या क्या चीज क्रिएट करेंगे, और ये क्या मार्केट कैप सेल्स का डेटा बहुत काम लगेगा। इसके अलावा जो टॉप क्वालिटी कंपनी में अशोक भाई ने काम किया, अशोक भाई वो टॉप क्वालिटी कंपनी बताओ तो वापस, आपकी टॉप क्वालिटी कंपनीज। हाँ ओके, हाँ कोई भी, एक मिनट, एक मिनट। कोई बात नहीं, शांति से कोई भी। ओके गुड। अब देखिए ये जो आपका जो टॉप क्वालिटी कंपनी का डेटा है, इसमें मेजोरिटी डेटा आ गया, राइट। यहाँ पे रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी के बाद आगे बढ़ो तो नेक्स्ट उसके बाद क्या था, पी तक तो आपने सबने डेटा डाला हुआ है, आपकी हर एक की स्प्रेडशीट में पी तक है। लेकिन देखो यहाँ पे 4 कॉलम ऐड किए हमने, कौन से, डेप्थ। अब जरूरी नहीं है मैं आपको पहले से बोलूं सब कंपनी का डेप्थ डालो, कोई जरूर नहीं है, आपको आईसीआर से पता चल ही गया। लेकिन अब जब आपने टॉप क्वालिटी कंपनी पे काम किया है, अभी जैसा मैंने धवल भाई को पूछा कि भी कोई भी 5 सेक्टर बताओ, तो हमें थोड़ी ना 120 कंपनियों सेक्टर में हम बाइंग करने जाने वाले हैं। पर आपकी जो टॉप की सेक्टर आपने छाने हुए, उसमें से जो टॉप की कंपनी है, कम से कम वो 2-3 कंपनी की डेप्थ तो लिख सकते हैं, राइट ना। ये डेप्थ तो लिखना बहुत आसान है, डेप्थ और रिजर्व, ये दो चीज लिख दी तो आपको डेप्थ टू इक्विटी रेशियो भी पता चल गया, रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो भी आ गया, राइट। सो इट्स सिंपल। लेकिन
पहले दिन से हम ये सारी चीज करने जाएंगे तो करने का जरूर भी नहीं है उतना, राइट। आपकी आगे वाली जो फ्रंट में जो काम किया वो इनफ है, पर ये एक्स्ट्रा क्यों करने का है? ताकि हमें और अच्छी, जब आप कंफ्यूज हो तब आपका डिसीजन और सिंपल हो जाए। आप देख सकते हो ना, डेप्थ 2-3 कंपनी की देख के भी आप पता चल सकते हो कि चलो यार 2 में से जो डेप्थ कम हो वही ले लो, है ना। तो दिस डेटा कुड बी यूजफुल, पर आप शुरुआत करो। आपने जो किया है, लोगों ने, आप सबने बहुत अच्छा काम किया है। यही काम को आगे बढ़ाना है, धीमे धीमे अलग अलग सेक्टर तक पहुंचना है, जैसे अशोक भाई ने किया। टॉप क्वालिटी कंपनीज, फिर बिहेवियर, ये 3 चीज की आपका काम हो गया, बराबर ना। पूरा इंडिया आपकी जेब में, और कुछ करने का जरूर नहीं है, बराबर अशोक भाई? जी सर। ओके, तो आपका अभी नेक्स्ट प्रोजेक्ट है सारे 120 सेक्टर की टॉप क्वालिटी कंपनीज पे काम करे, बराबर ना? वंडरफुल, थैंक यू सर। ये अशोक भाई शीट मिलेगी वाली? जी सर। विनोद भाई सर विनोद बोल रहा हूँ। क्या कहिए हाँ जी, विनोद जी, कहिए जी। ये अशोक भाई की शीट कहाँ मिलेगी, किस उसमें मिलेगी हमको? कौन सी? अशोक भाई की शीट अशोक कहाँ भाई ने मिलेगी? भेजी थी ना, उनकी यही स्प्रेडशीट को एक्सेल में डाउनलोड करके ग्रुप में डाली ये हुई है कहाँ आपके। अपडेट कर रहे हाँ, उसमें किसी ने हैं? क्वेरी लिखी थी सर उसमें। हाँ, वो उसमें विनोद भाई ने ही लिखी थी अशोक भाई, हाँ, इन्होंने ही उसमें क्वेरी क्या है लिखी कि थी। अब ये मैंने लिंक किया है फ्रंट सीट से, तो क्या है कि आप उसमें अगर चेंजेस करोगे तो वो सिर्फ ओपन हो जाएगी। यहाँ देखिए, जिस तरह के ये फ्रंट सीट में आ जाएगा ना, तो ये मैंने लिंक किया है, देखिए। मतलब मतलब इज इक्वल टू करके ये डेटा वहां से लिया है। तो आप सिर्फ वो स्प्रेडशीट ओपन करोगे तो ठीक, लेकिन उसको स्प्रेडशीट को ओपन कर सकते हैं, लेकिन उसको कॉपी करके पेस्ट करोगे तो शायद आपका एरर आएगा। बराबर है। बाकी एक्सेल यूज शीट कर के सकते हो आप। कुछ लिंक के फॉर्मूला अलग है, पर विनोद भाई ये स्प्रेडशीट इन्होंने अपने ग्रुप में डाली हुई है, राइट। ऐसा हो तो वापस अपडेट कर देंगे। आप नहीं उसमें मिल रही है। फिल्टर कर सकते हो, आप उसमें फिल्टर कर सकते हो इस तरह, किसी भी कंपनी का A to Z करके, कोई भी आप इसके साथ ये हो जाएगा चेंज। नहीं, इसे किसने ग्रुप हाँ, में बोलो डाल दो, विनोद भाई, टॉप क्या क्वालिटी कंपनी डाल दो, बिहेवियर एनालिसिस, इसे कहीं डाल दो, हेलो? जैसे टॉप क्वालिटी कंपनी है, बिहेवियर एनालिसिस, उसमें डाल दोगे तो उसमें मिल जाएगा देखने के लिए। हेलो? इस शीट को ना विनोद भाई कहीं का डाल कहना दो। है अशोक भाई कि आपका काम हो जाए ना अशोक भाई, तो ग्रुप में डाल देना एक बार, ताकि सब लोग हाँ, देख लें, बराबर ना? बिल्कुल। वो पहली वाली सीट जो डाली थी ना, उसके अंदर ये वाला डेटा नहीं था शायद, जो मैंने अभी मार्केट कैपिटल का दिया है, वो हो जाएगा, उसके बाद फिर से डाल दूंगा। ये अभी कर रहा हूँ, ये देखिए। इस जो पहली वाली मैंने सीट डाली थी, इसमें ये 2 डेटा नहीं होगा, बाकी सब है। लेकिन ये जो डेटा अभी मैं कर रहा हूँ, ये टोटल मार्केट कैप और ये 80% जिसका मार्केट कैपिटल है उसका सेल्स, ये सब डाल के मैं डाउनलोड करके ग्रुप में डाल दूंगा। और क्या एक होगा भी ना अशोक भाई, आपका जब टोटल मार्केट कैप का डेटा आप डाल दोगे ना, फिर देखो, फिर इसको फिल्टर करोगे टोटल मार्केट कैप को, तो आपको ये भी पता चल जाएगा सबसे बड़े मार्केट कैप कौन सी सेक्टर के है ना? बिल्कुल सर। बढ़िया काम की चीज है, और इसके लिए कोई मेहनत तो करनी नहीं, ऑलरेडी डेटा आपके पास है। हाँ, खाली लिंक उसको यहाँ पे लाना है फ्रंट सीट में। और सर इसमें मैंने ये भी लिया है जीडीपी का वाला भी। ओके, ये वर्ल्ड का जीडीपी, यहाँ जो शॉर्ट टर्म, ये इस सीट के अंदर हमने क्या किया है कि शॉर्ट टर्म ग्रोथ को ही पहले कंसीडर किया है, तो मैंने ये जीडीपी का भी सिर्फ शॉर्ट टर्म का ही यहाँ पे पूरा इतिहास नहीं लिया है, सिर्फ ये 4 बरस का शॉर्ट टर्म ग्रोथ का यहाँ पे डेटा लिया है। और ये इस सीट के अंदर हमें जाना है तो यहीं से हम जा सकते हैं। ओके, पीयूष जी। हाँ जी, कहिए सर। हाँ, अशोक जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। कल और आज मिला के लगभग 15 इंडस्ट्रीज का हमने अपडेट किया था इसी का डेटा का आधार से। अच्छा, क्या बात है। चलिए, अशोक भाई पार्था जी विशाखापट्टनम के हैं और आप राजकोट के,
एकदम हाँ जी अपोजिट डायरेक्शन, आप वेस्ट वो नॉर्थ साउथ पर देखो कितना आपका डेटा पे काम हो रहा है, वेरी गुड। थैंक यू सर। बहुत बहुत बढ़िया किया सर उसने। सर उसको एक तो चीज पूछना बोलना चाहता हूँ सर, कहिए कहिए पार्था जी। वो बहुत थोड़ा है, ये जो पब्लिशिंग का एक डिपार्टमेंट है, हाँ पब्लिशिंग डिपार्टमेंट में हम्म, उसमें लिखा हुआ है इंडिया मार्ट करके, हाँ बराबर है। मगर हम बीएससी वेबसाइट को चेक किया था हमने, क्योंकि इसका कॉपी हाँ को लेके हम बीएससी वेबसाइट में अपना है इंडस्ट्रीज वॉच करका, उसको हम हाँ कंपेयर करके फिर मेरा वेब शीट में डाला हूँ, मगर वो बीएससी हाँ ने चेंज किया लग रहा है उसमें, उसको हाँ उसमें लिखा हुआ है इंटरनेट सर्विस सेंटर करके। ओके, तो इंडिया वो मार्ट में। हाँ, इंडिया मार्ट को बीएससी ने चेंज किया। हाँ तो आपको भी चेंज कर लेने का, बराबर ना, अभी उसको फिर हाँ उसमें से हटा के इंटरनेट सर्विसेज में ही डाल दो, क्योंकि सही में तो वो हाँ उसी हाँ, सेक्टर में आनी चाहिए, बराबर ना। ओके ओके ओके, तो बहुत अब बहुत चेंज बहुत कर देने बढ़िया का, सर। बाकी पहले वो पब्लिशिंग में ही था। हाँ हाँ हाँ, वही एक चीज, क्योंकि वो हाँ अशोक जी इतना मेहनत किया था, तो उसको एक हाँ बार बता देंगे कि अच्छा लगता है बराबर करके हमने बराबर। बोला। और इनफैक्ट पार्था जी क्या है, एफएल जो है ना, हाँ AFFLE, वो भी हाँ हाँ हाँ, पब्लिशिंग का ही पार्ट थी पहले। जब वो आईपीओ अच्छा, आया तब वो पब्लिशिंग में था, पर देखो अभी हाँ हाँ उसको जैसे समझे उनका धंधा, फिर उसको डाल हाँ, दिया एडवर्टाइजमेंट वाले में। तो ऐसा ही होगा, कुछ कंपनी अच्छा, अपनी जगह बदलेगी, बराबर ना। ओके 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 ओके, बहुत बहुत, हाँ उसको बोल दीजिए अशोक जी को धन्यवाद बहुत। थैंक यू। ओके, या चले, धन्यवाद अशोक जी आपका, और और बढ़िया मैं काम किया, सबसे वंडरफुल। मैं सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी सब लोग ये सीट देखें और उसमें जो जो भी गलतियां हैं वो मेरे को बताए, तो मैं उसको करेक्ट करता जाऊं, तो जिससे मेरी ये पूरी की पूरी सीट है 100% भूल प्रूफ हो जाए, एकदम बढ़िया हो जाए। मैं बराबर सबसे बराबर आग्रह करूंगा कि सब लोग, कोई भी जिसको भी लगे कि इसमें गलती है, तो वो मैं करेक्ट करता जाऊं, तो ये करेक्ट प्रूफ हो जाए, और वो सब अशोक लोग जी इसको। अशोक जी, आपका कोई गलती नहीं है, जैसे आपका जो इच्छा है ना, हम भी चाहते हो आपका जो भी शीट है वो मास्टर शीट बन जाए फाइनल में, जी सर, तो इसके लिए जी सर। थोड़ा वो चीज हमने बोला है आपको। आप लोगों का सहयोग रहेगा और पीयूष जी का साथ रहेगा तो हो जाएगी सर। अभी पीयूष वो सर हम का। जरूर करेंगे, लेकिन इसका शेयर कर दो लिंक इसका। राइट राइट। जी सर। चलिए, वंडरफुल वंडरफुल अशोक भाई, और इसी बहुत प्रकार अच्छा से काम किया। आगे बढ़ते जाइएगा। हम होप थैंक यू। करेंगे आने वाले समय में और क्रिएटिव चीजें निकलेगी। एक बार डेटा आपके पास आ गया ना, फिर तो जी सर। वही डेटा में से आपको अलग अलग क्रिएटिव चीजें मिलती जाएगी, राइट। जी जैसा सर, अभी आप बिल्कुल। लोगों ने मिलिंद भाई और सबका प्रेजेंटेशन देखा था लास्ट वीक, जो हम लोगों ने, जो इन लोगों ने हाँ सर। प्रेजेंट किया, कितना बढ़िया था। सर मैं टाइम लेता हूँ, राइट ना, मैं वो आपके तो आप सब पूरे, कर सकते हो, मैं है ना। सब पूरे का पूरा सभी में प्रेजेंट रहता हूँ, अगर टाइम मिलता है अच्छा, तो। राइट, बढ़िया मैं बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। दूसरी बैच में भी प्रेजेंट रहता हूँ, वेबिनार में। अच्छा, वहां से वो मुझे तो कुछ मैंने ना कुछ, नोट किया है कि आप हर एक बैच में होते हो। क्या कि सर उसमें से मुझे एक दो आइडिया मिलता रहता है, जो मेरी गलतियां हैं वहां से मुझे मिलती रहती है, मैं कौन सी गलती करता हूँ, इसलिए मैं, बराबर बराबर, ओके और मैं ओके। पूरे स्टार्ट से एंड तक रहता हूँ किसी भी वेबिनार में।